हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्वांटिफायर्स। आज का जो पैसेज है ये कहीं ना कहीं आप इसकी कैटेगरी को जो है बोल सकते हैं दैट इट इज एन एकेडमिक और प्रोबेबली सम सॉर्ट ऑफ अ हिस्टोरियोग्राफिकल क्रिटिक है ये। इस पैसेज की जो टोन है वो काफी क्रिटिकल है, काफी एनालिटिकल है। जो हम राइटिंग स्टाइल बोल सकते हैं वो काफी स्कॉलरली टाइप का है। एंड जनरली इस टाइप के पैसेजेस जो हैं हमारे ह्यूमैनिटीज या हिस्टोरिकल का हिस्ट्री का जो डिसिप्लिन है उससे आता है। इस टाइप के पैसेजेस में मेजरली जो टेस्ट क्रिएटर्स हैं आपके, व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेस्ट? दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर स्किल्स ऑन अंडरस्टैंडिंग द ऑथोरियल बायस, probably track the timelines across the paragraphs, and कहीं ना कहीं ये चीज मैंने पहले भी बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेक्चर्स में बताया है दैट whenever a passage has two scholars, two theorists, let us say two philosophers, two historians, the author would definitely delve into the deeper aspects of drawing a parallel between them or any sort of a differentiation between them. Let's go ahead with the passage and understand what is this passage primarily talking about. So now, what is the passage majorly talking about? We'll quickly read through the passage. This past spring, television viewers in Britain were treated to a six-part series called Civilization about the rise and possible fall if China has its way of West, hosted by historian Niall Ferguson. The series offered a highly reductive version of history, identifying the West with qualities such as competition, scientific inquiry, and the rule of law, and denigrating societies from Asia to the Middle East and Latin America for lacking these virtues. In effect, it provided a usable past for those who see the world as driven by a clash of civilization. So basically, in the first paragraph, what are we primarily talking about? We are talking about some sort of television viewers who were given about a flavor of the fact as to how the West has a couple of qualities which probably Asia and Middle East and Latin America does not possess. Right? Now, this is what the passage is majorly talking about in the first paragraph. अब फर्स्ट पैराग्राफ में एक बहुत बहुत ही कॉमन वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है? डेनिग्रेट मींस जब आप किसी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हो या किसी की वैल्यू को काफी ज्यादा नीचे लेके आने की कोशिश करते हो। एंड एक उससे भी ज्यादा कॉमन वर्ड है जिसको हम बड़ी बार सुनते हैं, बड़ी बार पढ़ते हैं, बट हमें डिफरेंस शायद उसका इतने कैटेगोरिकली नहीं पता। जो आपके दो वर्ड्स हैं, एक आपका होता है इंक्वायरी विच इज स्टार्टिंग विद ई, द अदर इज द वन विच इज स्टार्टिंग विद आई। सो नाउ द बेसिक डिफरेंसेस, दोनों का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टिगेशन करना। बट ई वाला जो होता है ये आपका एक, अगर आप किसी भी बस स्टैंड में जाएंगे, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाएंगे, कोई भी पब्लिक यूटिलिटी वाली जगह पे जाएंगे, वहां आपको ई से ही मिलेगा। तो इसका मतलब है जनरल इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में लेना, जो कि काफी एक इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट। But whenever you're looking out for any sort of formal answer or formal information, that is the one that starts with I. Now, again, coming back to the summary of the first paragraph. So, the first paragraph is talking about some sort of television viewers who were given a flavor about the fact as to how the West is something that is more competitive in comparison to the Middle East, Latin America, and Asia for that matter. One episode explored why, after the independence, the United States forged ahead economically while nations of Latin America stagnated. In a usual twist, Ferguson chose South Carolina, a state governed by tight-knit planter oligarchy. अब oligarchy क्या होता है आपको? Again, we know these are all the forms of governments. सो ओलिगार्ची जैसे हमारी डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, सो ओलिगार्ची किस टाइप की गवर्नमेंट होती है? जहां पे आपके सोसाइटी का एक स्मॉल सेक्शन जो कि काफी ज्यादा एलीट है, काफी ज्यादा रिच है, वो लोग जब एक गवर्नमेंट बनाते हैं उसको आप ओलिगार्ची बोलते हैं। सो इन साउथ कैरोलिना, स्टेट गवर्न बाय टाइट knit planter oligarchy as a model of Jeffersonian democracy resting on small property ownership, in contrast to the autocratic, that is authoritative societies south of the border organized by latifundia. Only after 45 minutes of 1 hour show did Ferguson mention the existence of slaves. अब यहाँ पे एक और important information आ रही है. The majority of South Carolina's population,
When slavery was finally discussed, it was presented not as a crucial structure feature of early American society, but as a moral dilemma, an original sin expiated by the election of Barack Obama. Expiate का मतलब क्या होता है? जब आप amends करते हो किसी चीज के लिए, right? So it is some sort of a purification that is there. Among many of the virtues of Robin Blackburn's The American Crucible, its demonstration that slavery must be at the center of any account of Western ascendancy. Without the colonization of the New World, Blackburn notes at the outset, the West as we know it would not exist, and without slavery, there could have been no colonization. तो यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वेस्टर्न नेशन को असेंड करना है, ऊपर जाना है, अकॉर्डिंग टू ब्लैकबर्न उसके दो मैंडेट्स होने चाहिए. सबसे पहली बात, वहां पे स्लेवरी होनी चाहिए, एंड दूसरी बात, अगर स्लेवरी नहीं है तो वहां पे कॉलोनाइजेशन कभी भी नहीं हो सकती. Between 1500 and 1820, African slaves constituted about 80% of those who crossed the Atlantic from east to west. More than any other institution, the slave plantation underpinned the extraordinary expansion of Western power and the region's prosperity in relation to the rest of the world. Now, why did this particular place prosper? Because we know that about 80% of the people, when you're talking about the Africans, they migrated from the east to the west, and ultimately they were responsible for the Westerns or the Westerners gaining a lot of power and region's prosperity, because they were the ones who were majorly under the garb of slavery. Blackburn emphasizes that far from being static, New World slavery was constantly evolving institution, and he identifies three broad eras in its history. In the first, which he dates about 1500 to 1650, slavery was centered in Spanish colonies. अब colonization वाले point को and slavery वाले point को हम आगे लेके जा रहे हैं. And small-scale urban-based. By 1630, half of the population of the great colonial cities, Lima, Havana, and Mexico City, consisted of African slaves and their descendants. African slaves तो थे ही, and उसकी जो आगे descendants थे, जो आगे progeny थी, they were also into slavery. But in the countryside, that is the village or the outskirts of the urban area, in the silver and gold mines that enriched the Spanish crown, that is when you're talking about the government, and the haciendas ruled by powerful colonial settlers, the indigenous, that is when you're talking about the native population, performed most of the labor. At the time, the Spanish Empire lacked an extensive plantation system. By 1770, colonial exports and re-exports, mostly of the slave-produced goods, represented between a third and a half of Atlantic trade. अब यहाँ पे सारा देखो, हमारे को यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है about how slavery started, how slavery was indeed responsible for the Western powers gaining a lot of prosperity and momentum. And then we've been given the example of an evolving institution, specifically in the Spanish colonies. The profits swelled merchants' coffers, that is, the pockets, and the treasuries of European nation states. By this time, too, the slave plantation had become a highly versatile, that is, flexible economic unit, well adapted to the demands of the capitalist marketplace and quite modern in its methods of production, marketing, and credit arrangements. Far from a retrograde drag on economic development, slavery was a sinew of national strength. It was a sin that was basically making the country very strong and of economic prosperity. In the 19th century, slavery entered its third era, one rife with contradictions. Rife का मतलब होता है full of. So basically, what is this passage majorly talking about? In this passage, the author is primarily discussing something in the beginning about, how a particular television series was being propagated. And he's also giving us some sort of a review of why slavery was something that, has really boosted up the Western profile and made it very, very prosperous. तो इसमें हम लोगों को इसको आप हिस्टोरिकल नैरेटिव बोलोगे. अब नैरेटिव क्यों बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे कपल ऑफ इंस्टेंसेस इस तरह के बताए गए हैं जो कि सुनने में ऐसे लगते हैं कि ऑथर कुछ रियल लोगों की बात कर रहा है. इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों के दो लोगों के पर्सपेक्टिव से जो है चीजें बताई गई हैं. राइट? अब सबसे पहले हम लोगों को किस चीज के बारे में बताया गया? वी बीन टोल्ड समवेयर अबाउट द क्रिटिक ऑफ फर्ग्यूसन.
जहां पे रिडक्टिव हिस्ट्री बताया गया है, जहां पे आप वेस्टर्न सक्सेस को एंटायरली बोलते हो कि भाई वेस्टर्नर्स जो हैं काफी competitive हैं, एंड दे आर द ones who are basically thriving in comparison to Asia, Middle East and Latin America, right? बट कहीं ना कहीं ये पता चलता है हम लोगों को दैट इट इज ड्रिवन बाय अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। आगे पूरी चीज किस तरह से बता रखी है कि ऐसा क्यों है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है प्रोग्रेस किया लेकिन लैटिन अमेरिका पीछे रह गया है। One common factor that was there was we are talking about the role of slavery. And then the core argument of the passage, which is dependent on Blackburn's work, is revolving probably around the Western ascendancy, colonization, economic prosperity, right from 1500s to the 19th century, right? And we have been told about the stages as to how slavery basically existed and it started, right? Now let us look at the questions. I'll just zoom it a bit so that it is visible to all of you. All right. Now, if you look at the first question, the author thinks that Niall Ferguson presentation of Western history was. अब फर्ग्यूसन ने जो है वेस्टर्न हिस्ट्री को कैसे बताया? अब अगर हम टोन के हिसाब से भी देखें, फर्ग्यूसन ने बहुत सिंपल वे में जो है एकदम क्लियर कट वे में जो है हम लोगों को बता रखा है कि वेस्टर्न हिस्ट्री कैसी थी। एक्सप्लेनेशन क्लियरली क्या बोला है हमारे को, एक्सप्लिसिटली हम लोगों को एक लाइन में बताया गया है दैट फर्ग्यूसन ने ऑफर किया था एक हाईली रिडक्टिव वर्जन ऑफ हिस्ट्री। अब रिडक्टिव का मतलब क्या होता है? या तो होना बहुत ज्यादा उसने एक इलेबोरेटिव वर्जन ऑफ हिस्ट्री दिया। वी हैव वेरी क्लियरली बीन टोल्ड कि इसका जो वर्जन था इट वाज वेरी वेरी रिडक्टिव। सो दैट मीन्स उसने बहुत क्लियर कट, अनरियलिस्टिक नहीं हो सकता। कॉन्ट्रेरियन तो ब्लैकबर्न ने दिया था ओपिनियन। पेट्रोनाइजिंग का मतलब होता है ह्यूमिलिएटिंग, बट उसने कोई भी इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया है ह्यूमिलिएटिंग। अगर पेट्रोनाइजिंग होना तो ऑथर जितने भी वर्ड्स किसी के भी पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल करेगा दे आर गोइंग टू बी हाईली नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द टोन। बहुत नेगेटिव एंड हाईली क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स इस्तेमाल। तो वो सिंपलिस्टिक क्यों है? क्योंकि हम लोगों को बताया इट वॉज हाईली रिडक्टिव वर्जन ऑफ हिस्ट्री, राइट? जहां पे उसने बहुत क्लियर कट शब्दों में बोला है कि वेस्ट में जो है कंपटीशन की क्वालिटीज थी, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एशिया एंड द मिडिल ईस्ट उसमें जो है इस तरह की कोई भी क्वालिटी नहीं थी। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 हैज टू बी ऑप्शन नंबर ए। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ आंसर and a question rather. According to Robin Blackburn's The American Crucible, so we are talking about this particular जो इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमेरिकन क्रूसिबल। अब क्रूसिबल का मतलब क्या होता है? एक तो क्रूसिबल का आपका मतलब होता है जहां पे आप किसी भी एक हाई टेम्परेचर पे एक पॉट में जब आप चीजों को काफी ज्यादा हीट करते हो ताकि वो मेल्ट हो जाए। एंड दूसरा जो है क्रूसिबल का मतलब होता है एक बहुत ही ट्राइंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहां पे लोगों के न्यू न्यू आइडियाज जो हैं उसको टेस्ट किया जाता है। लिटरेचर में या लिटरल मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग इसका यही होता है where you are basically either trying to talk about a melting point in terms of where a lot of forces they mixed, or a melting point with regards to the fact कि आप साइंटिफिक वे में जब उसको समझाने की कोशिश करते हो। सो क्रूसिबल का मतलब क्या है? द अमेरिकन क्रूसिबल मतलब व्हाई वाज इट अ मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट Latin America, we are talking about Spanish people who were probably the slaves. We are also talking about how America made Africans their slaves. So उस हिसाब से हम अगर आंसर देखें, according to Robin Blackburn's The American Crucible, all of the following are true about slavery except. Now let us look at all the answer choices. Option number A बोलता है it was the cause of industrialization and capitalism in the West. अब डायरेक्टली उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म की बात नहीं की है ऑथर ने, राइट? उसने ये चीज बोला है प्रॉस्पेरिटी आई थी। अब प्रॉस्पेरिटी को जो है हम कहीं पे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म इनसे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों जो है बहुत टेक्निकल टर्म्स है।
इट वॉज इंटेग्रल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट, येस इट वॉज। सो ये तो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, हम लोगों को क्लियरली बता रखा है कि किस तरह से वेस्टर्न रीजन की जो प्रॉस्पेरिटी है ना, प्रॉस्पेरिटी इज अ वेरी वेग टर्म, राइट, एंड देन वी हैव ऑल्सो बीन टोल्ड कि किस तरह से इकोनॉमिकली जो है ये लोग काफी ज्यादा दे वर बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम लोगों को इकोनॉमिक वायबिलिटी विच इज एफिलिएटेड टू लेट अस से स्लेवरी, वो दे रखा है कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द पैसेज में हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या बोला, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो हो सकता है, दिया हुआ है तो एक्सेप्ट में नहीं आ सकता। इट पेव्ड वे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न पावर थ्रू कॉलोनाइजेशन, ये भी हम लोगों को बता रखा है कि किस तरह से वेस्ट जो है थ्राइव ही किया था कॉलोनाइजेशन की वजह से। इट अडेप्टेड टू द की फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द वेस्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है जिसके बारे में हम बात, मतलब पॉइंट नंबर 4 जो है ये दे रखा है, क्योंकि उसने क्लियरली क्या बोला था, दैट द होल थिंग ऑफ द वेस्ट was well adapted to the demands of the capitalist marketplace। अब capitalist marketplace का मतलब ये नहीं है कि कैपिटलिज्म वहां से स्टार्ट हुई, उसका मतलब ये है कि जितने भी आपकी ये पावरफुल कॉलोनीज थी, दे वर बेसिकली रेडी एंड वेल अडेप्टेड टू द डिमांड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट मार्केट प्लेस। इनको पता था मार्केट में किन किन चीजों की जरूरत है, एंड दे वर फंक्शनिंग एज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल इकोनॉमिक यूनिट। तो ये भी नहीं हो सकता। एक्सेप्ट वाला जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इट वॉज द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कैपिटलाइजेशन। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड, बट यू कैनॉट से that it was the cause of industrialization. So the correct answer for option number 2 is going to be question number 2 is going to be option number 1. Now coming to question number 3. The author refers to Ferguson's choice of South Carolina as an unusual twist, paragraph specific question, for all of the following reasons except। अब यहाँ पे भी हम लोगों को क्लियरली एक चीज के बारे में बोला है कि उसने जो है साउथ कैरोलिना का एग्जाम्पल क्यों लिया था। उसने साउथ कैरोलिना का एग्जाम्पल इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कॉलोनाइजेशन के बारे में काफी कुछ बता रखा है। दूसरी चीज यहाँ पे जो उसने बात की थी आपकी अनयूजुअल ट्विस्ट के बारे में, इट वॉज बेसिकली ट्राइंग टू ड्रॉ अ वेरी स्टार्क काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रोडिक्शन, जिसके बारे में हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, बिटवीन द हिस्टोरिकल रियलिटी ऑफ साउथ कैरोलिना एंड किस तरह से फर्ग्यूसन ने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। इन दोनों चीजों के बारे में जो है उसने आपको बोला था, क्योंकि फर्ग्यूसन ने क्या बोला था, ही मेंशंस द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेव द मेजॉरिटी ऑफ साउथ कैरोलिनास पॉपुलेशन, एंड उसी चीज को जो है आगे हमने डिफाइन किया है, उसके बारे में जो है आगे हमने बात किया है, राइट। सो इफ यू कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, South Carolina symbolized the moral dilemma of slavery existing. It did not symbolize, right? यहां पे हमें बात किस चीज का किया गया है, हम लोगों को ये बोला है कि जब स्लेवरी को फाइनली अक्रॉस द टेबल डिस्कस किया गया तो उसको एज अ क्रूशियल स्ट्रक्चरल फीचर नहीं बताया गया था अमेरिकन सोसाइटी का, बट ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं वो एक मॉरल डिलेमा है। मॉरल डिलेमा का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप मॉरल भी है वो इमोरल भी है, सिन है या नहीं है, उन चीजों के बारे में नहीं पता था। एंड टू ओवरकम दैट सिन ऑफ स्लेवरी they elected a black president, right, to expiate or to make amends for that by the election of Barack Obama, who was obviously a black। So इस चीज का एग्जाम्पल दे रखा है कि स्लेवरी की गलतियों को अमेरिका ने एक्सपिएट करने के लिए क्या करा, एक ब्लैक प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, राइट। सो द कंपैरिजन ऑफ साउथ कैरोलिना विद लैटिन अमेरिका वाज मिसप्लेस्ड। अब एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, अब एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है आपको कि फर्ग्यूसन की चॉइस जो थी साउथ कैरोलिना की एज एन अनयूजुअल ट्विस्ट फॉर ऑल ऑफ द रीजंस एक्सेप्ट। अब कंपैरिजन उसने किया विद लैटिन अमेरिका, डेफिनेटली ये जो है काफी ज्यादा मिसप्लेस्ड था, राइट। The driver of South Carolina's economy was not competition and scientific inquiry, it was all related to slavery, क्योंकि वहां पे आपका उसने क्लियरली बोला है मेजोरिटी ऑफ स्लेव्स वर देयर, slaves made up the majority of the population। this is again यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखा है कि मेजोरिटी ऑफ साउथ कैरोलिना की पॉपुलेशन जो थी वो क्या थे, देवर ऑल स्लेव्स। स्लेवरी जो है वहां का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज था, एंड क्यों था, क्योंकि वहां पे जितनी भी आपकी ऑटोक्रेटिक या जितनी भी आपके
ओलिगार्ची वाले को, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप के ऊपर लोग थे, ऑल ट्राइंग टू basically gain some sort of a momentum on relying on these people who were their slaves, because they knew they could probably bring out some sort of an ascendancy as a race and as a country, right? So correct answer is going to be option number A, क्योंकि ये बाकी तीन जो हैं, they are not talking about an unusual, sorry, they are talking about an unusual twist. This is South Carolina symbolized the moral dilemma. It did not symbolize. We have just been told that the dilemma was there as a part of the crucial structural feature. Based on the information in the passage, which of the following is central argument of Robin Blackburn's The American Crucible? Now, what is he trying to talk about here in this particular book? उसका central argument है क्या अपनी किताब? अब उसने बार बार जो है एक चीज के बारे में बोली है, स्लेवरी स्लेवरी स्लेवरी, एंड देन समवेयर राइट फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ टिल द वेरी एंड ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फैक्ट एज टू हाउ स्लेवरी was very much instrumental in bringing about some sort of prosperity in the western nations. उसने पूरे पैसेज में ही इस चीज के बारे में जो है बार बार बात की है, राइट? सो अगर हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि बुक का जो एक इसेंस है वो किस चीज का है, ए बोलता है द फाउंडेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन वाज फॉर्ज्ड इन द क्रूसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर कॉलोनाइजेशन की फाउंडेशन को स्टार्ट ही क्रूसिबल ऑफ द न्यू वर्ल्ड में किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, अब आप बोल सकते हो पार्शली ये करेक्ट है, राइट? लेकिन उसने राइज एंड फॉल के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बताया है कि कॉलोनाइजेशन या स्लेवरी आपकी ग्रेजुअली किस तरह से थ्राइव हुई है फ्रॉम 1500 टू 1820। उसमें डिप कब आया कब नहीं आया वो हमें नहीं बताया है, बस एट द एंड हमारे को ये बोला है कि इन द 19th सेंचुरी स्लेवरी एंटर्ड इट्स थर्ड एरा, वन फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। राइव का मतलब होता है फुल ऑफ। वी हैव नॉट बीन टोल्ड, वी जस्ट बीन टोल्ड असेंट कैसे हुई, डिसेंट कब हुई कब नहीं हुई उसका हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। Slavery formed the basis of the expansion of Western power and prosperity. Absolutely, उसकी पूरी किताब ही हमें इस चीज के बारे में बता रही है। उसने बोला है कि अगर वेस्ट would not have existed अगर स्लेवरी वहां नहीं होती, एंड स्लेवरी नहीं होती अगर वहां पे कॉलोनाइजेशन ना होती। सो बेसिकली ये सारी चीजें जो है हमारी स्लेव प्लांटेशन के आसपास जो है रिवॉल्व कर रही हैं। देन वी हैव बीन टोल्ड कि सिर्फ अफ्रीकन स्लेव्स नहीं थे, उनके डिसेंडेंट्स को भी इन्होंने ऐसे बनाया। एंड उसके बाद जो इसने स्पेनिश कॉलोनीज के बारे में बताया है या स्पेनिश एम्पायर के बारे में बताया है, दैट दीज स्लेव्स आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द डिमांड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट मार्केट प्लेस, which was responsible for bringing about the economic prosperity in somehow the western part of the world. Centuries of enslavement promoted the rise of capitalism in the West. Very, 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 probable answer choice. But ये कहीं पे भी नहीं बोला कि उसने promote किया the rise of capitalism. Capitalism as a फंडा हम लोगों को जो है categorically discuss नहीं किया है, capitalist marketplace के बारे में बात किया है। सो एक तो होता है ना कि एक पॉइंट से आपकी कैपिटलिज्म जो है जनरेट हुई है एंड वहां से थ्राइव की है, एक ये है आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं टू केटर टू द मार्केट कैपिटलिज्म। दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 is going to be option number 3. Coming to the last question, where we are talking about, uh, in this particular question, it's an inference question, and as we've discussed umpteen times in the previous sessions also, it can be inferred from the passage that an important feature of New World slavery in its second era was. अब यहाँ पे न्यू वर्ल्ड स्लेवरी इन सेकेंड एरा, न्यू वर्ल्ड स्लेवरी के बारे में कहाँ पे बोला है? हम लोगों को एक न्यू वर्ल्ड के बारे में जो बात किया था वो उसने किया था फ्रॉम 1500, ये देखिए यहाँ पे उसने दे रखा था न्यू वर्ल्ड स्लेवरी हमारी स्टार्ट हुई थी व्हाट कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फ्रॉम 1500 टू 1650 एंड स्लेवरी सेंटर्ड इन द स्पेनिश कॉलोनी, स्मॉल स्केल अर्बन बेस्ड। ठीक, उसके बाद उसने 1630 के बाद वाला बता रखा था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर फ्रॉम लीमा, हवाना एंड मेक्सिको सिटी। So it can be inferred from the passage that an important feature of New World slavery in second era was 1500 से 1650 के बीच की जो era ऑफ आपकी स्लेवरी थी उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया है कि स्लेवरी किस तरह की थी?
इट वॉज नॉट समथिंग, इट वॉज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑफ कोर्स, लेकिन वो काफी ज्यादा स्मॉल स्केल थी एंड अर्बन बेस्ड थी, राइट? तो इसके आसपास हमारे को आंसर जो है रिवॉल्व करेगा बाय 1630, क्योंकि 1650 तक है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, द ग्रेट colonial cities Lima, Havana, Mexico, consisted of African slaves and their descendants, but in the countryside, in the silver and gold mines that enriched the Spanish crown and the haciendas ruled by powerful colonial settlers, the native, that is indigenous population, perform most of the labor. So you're not talking about Africans, but you're talking about the indigenous, the native people. अब ए बोलता है मेजॉरिटी ऑफ द स्लेव्स हैड बीन बोर्न इन द न्यू वर्ल्ड इटसेल्फ। हम लोगों को बोला है अफ्रीकन एंड देयर डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट पैदा हुआ होगा। अफ्रीकन जो है वो तो ऑलरेडी जो है माइग्रेट किया है आपका, राइट, टू द ग्रेट colonial cities. An extensive plantation system that employed slave labor. अब ये हम बोल सकते हैं an extensive plantation system that employed slave labors, क्यों बोल सकते हैं इसको? क्योंकि हम लोगों को ये चीज बताया है कि ये जो स्लेव प्लांटेशन है ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो गया था, एंड ये स्लेव प्लांटेशन जो है आपका काफी ज्यादा यहाँ पे जो है लोगों ने आपकी जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है मेहनत करनी शुरू कर दी थी, राइट? एंड दे वर बेसिकली ड्राइविंग द अटलांटिक ट्रेड, जिसके बारे में हम लोगों को ये चीज बताया है। एंड ये सेकेंड इरा में जो है ये स्टार्ट हुआ। न्यू वर्ल्ड स्लेवरी इन्होंने 1500 से 1650 दिया है। उसके बाद भी जो है ये हम लोगों को पूरे बताते जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में, राइट? एंड एट द टाइम द स्पेनिश एम्पायर लैक्ड एन एक्सटेंसिव प्लांटेशन सिस्टम, सो एन एक्सटेंसिव प्लांटेशन सिस्टम दैट एम्प्लॉयड स्लेव लेबर्स, इसको हम कहीं ना कहीं रख सकते हैं। मिनिमाइज डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजिनस अमेरिकन लेबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिमाइज डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये बताया है जो नेटिव आपके स्पेनियार्ड्स थे या स्पेनिश लोग रहे होंगे, दे वर द वंस हु वर कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम आपके गोल्ड एंड सिल्वर माइन से रिलेटेड है। तो ये तो डेफिनेटली डज नॉट मेक सेंस। राइफ विद कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ स्लेव रिबेलियंस एंड रिप्राइजल्स, कॉन्ट्रोडिक्शन था, लेकिन ये कहीं नहीं बता रखा है कि स्लेव रिबिलियन था या रिप्राइजल था। रिप्राइजल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिप्राइजल? रिप्राइजल का मतलब होता है जब आप री इसमें दे रखा है आपको एज अ वर्ड रूट, एज अ प्रीफिक्स। सो रिप्राइजल इज समथिंग जहां पे आप बात करते हो कि मेरे अंदर किसी चीज का एक गुस्सा है, वेंजेंस है, तो उसकी वजह से जो है मैं रिटेलिएट कर रही हूँ, राइट? सो अब यहाँ पे हम लोगों को एंड में ये तो बोला है कि एक नेशनल स्ट्रेंथ जो आपकी आगे थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, 19th सेंचुरी में जो है it entered its third era that was full with contradictions. So in any case, वो स्लेवरी इन दी सेकेंड इरा का एक, वो तो 19th सेंचुरी में आपका हुआ होगा जब एंड हुई होगी। अब न्यू वर्ल्ड स्लेवरी का जो है हम लोगों को ये बता रखा है कि इट डेट्स अबाउट 1500 टू 1650, लेकिन पूरा जो हम लोगों को आगे बता रखा है प्लांटेशन सिस्टम का, दैट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग बाय 1770। तो पूरा जो हम स्लेवरी का एक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक न्यू वर्ल्ड स्लेवरी इन दी सेकेंड इरा, इसको सेकेंड इरा क्यों बोला जाता है? पूरा हमारा जो टोटल टाइम स्पैन है वो तो 1500 से लेके 1820 है, उसके बीच के एक पीरियड को जो है इसीलिए सेकेंड इरा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपकी एक एक्सटेंसिव स्लेव प्लांटेशन थी, राइट? जहां पे इनको इस्तेमाल किया गया था फॉर देयर ओन स्पेसिफिक पर्पस। सो थ्रू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड फिगरिंग आउट और लॉजिकली डिड्यूसिंग, it is going to be option number 2, an extensive plantation system that employed slave labor. So it was an important feature in the second era, which is probably from 1500 to 1650, and then it expanded somewhere beyond 1770, right? So the correct answer for question number 5 is going to be option number 2. So I hope you did enjoy this particular passage, even though the passage was dominated by a couple of words which we may not be very well versed with, but the general intent was something that was very easy to understand. Whenever a passage like this is given to you, you need to differentiate between what is going to be the topic and what is going to be the scope. So let us say, even if the topic was somewhere revolving around how the Western nations gained some sort of a power, राइट? बट इसका जो एक मेजर इंटेंट है जो इस पैसेज में डिस्कस किया गया है
that major intent was primarily revolving around what slavery is all about, right? So I will see you with another very engaging session on a topic that would be a level up than what we've discussed today. So till then, keep reading, keep engaging more with the reading lessons that are shared online, and at the same time, always try to increase on your database of knowledge by reading more and more articles and practicing the passages to the utmost of your capacity. Thank you so much.